جب ماما نے تجھے بلایا اس وقت بتا نہیں سکتا تھا تو مجھے؟ تھانے پہنچ کر سب سے پہلے اس نے علی کو اپنے آفس میں بلایا۔ کیا مطلب؟ ضامن صاحب اپنا موبائل چیک کریں۔ کوئی 1000 بار کال کی تھی میں نے آپ کو، لیکن تم کب کسی کو خاتے میں لاتے ہو؟ بس اپنی مرضی کرتے ہو اور 5 دن بعد تشریف لا رہے ہو، لیکن کوئی پریشانی نہیں چہرے پر۔ اگر یہی حرکت ہم میں سے کوئی کرتا بتائے بغیر چھٹی پر رہتے تو اس وقت یہاں نظر نہیں آتے، لیکن نہیں بھائی، آپ تو ٹھہرے ایس پی ضامن علی شاہ اور ڈی ایس پی سر کے بھی فیورٹ۔ اچھا اچھا، ختم کرو اس بات کو، اور ایک کام کرو، سلمان کے گھر پر نظر رکھ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، سب پتہ لگا۔ ضامن نے علی کو مزید کچھ کہنے سے روکا اور گیا ہوا۔ ضامن پلیز یار بس کر جاؤ، چھوڑ دے سلمان کا پیچھا، بھابھی کے ساتھ اپنے رشتے کو وقت دے۔ پتہ ہے مجھے اتنا شوق تھا بھابھی سے ملنے کا، لیکن ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ شوہر اور باپ کے بیچ پس رہی ہیں وہ، بیچاری سہمی ہوئی تھیں اس دن، رحم کر ان پر۔ علی کی آنکھوں کے سامنے حوران کا سہما ہوا چہرہ آیا تھا۔ اچھا یار چھوڑ اسے، جو کہا ہے بس وہ کر۔ حوران کے ذکر پر ضامن بے چین ہوا تھا، اور اس کی بے چینی علی کی آنکھوں سے نہ چھپ سکی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 دن سے نہ کوئی گھر میں داخل ہوا اور نہ کوئی باہر گیا ہے۔ جب علی کو سلمان کے گھر کی یہ اپڈیٹ ملی تو وہ فوراً ضامن کے پاس آیا تھا۔ ایسا ہی ہے ضامن۔ ضامن کے چلانے پر علی نے بات کی تصدیق کی۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ضامن اب اپنی چیئر سے اٹھ چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علی نے ضامن کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سلمان کے گھر۔ باہر نکلتے ہوئے ضامن نے مختصر جواب دیا۔ میں بھی ساتھ آؤں گا۔ علی کو فکر ہوئی تھی کہ ضامن پھر غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس کے پیچھے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سلمان کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر ضامن نے بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا، جبکہ علی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ حورین، حورین، کہاں ہو تم؟ گھر کے اندر داخل ہو کر وہ چلاتا ہوا حورین کو پکارنے لگا۔ جا چکی ہے وہ ضامن شاہ، تم سے بہت دور۔ کسی کمرے سے نکل کر سلمان باہر آیا تھا، جبکہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ ضامن کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ بکواس بند کرو اپنے سلمان، نہیں تو وہ حشر کروں گا تمہارا کہ پچھتاؤ گے بعد میں۔ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ضامن۔ ضامن نے سلمان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کا گریبان چھوڑا اور گھر میں ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر حورین کو پکارتے ہوئے ڈھونڈنے لگا، جبکہ علی کو سامنے والی وال پر لگی کچھ تصویروں نے چونکا دیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ ضامن ایک بار پھر سلمان کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے حورین؟ یہ کیا ضامن شاہ؟ جن آنکھوں میں ہمیشہ دہشت ہوتی تھی آج ان آنکھوں میں ڈر ہے؟ کیا میرے سامنے کھڑا شخص ضامن علی شاہ ہے؟ ضامن کی بے چینی دیکھ کر سلمان کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی، اس لیے وہ بے خوف ہو کر بولا، یو شٹ اپ اور سیدھی طرح بتاؤ حورین کہاں ہے؟ ضامن ایک بار پھر دھڑا تھا۔ کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے کچھ بھی کر لو تم۔ تم سیدھی طرح بتاؤ گے یا میں اپنے طریقے سے پوچھوں؟ نہیں بتاؤں گا۔ علی لے جاؤ اسے، اور وہ حشر کرو اس کا کہ بس اس کے منہ سے سچ ہی نکلے۔ ضامن نے سلمان کو علی کی جانب دھکا دیا۔ علی نے سلمان کو پکڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا دل اس وقت ایک انکشاف ہونے پر افسردہ ہو گیا۔ وہ لڑکی جو علی کے دل میں نقش ہو چکی تھی، جسے پہلی ملاقات سے ہی علی نہ بھولا تھا، جس کے دوبارہ ملنے کی اس نے خواہش کی تھی، لیکن وہ شاید اب بہت دور تھی اس سے۔ نہیں حورین، تم اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتی۔ تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے ضامن شاہ کی پہنچ سے دور چلے جاؤ گی؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ علی اور سلمان کے جانے کے بعد ضامن خود سے ہم کلام ہوا۔ تھانے جانے کے بعد راستے میں ہی سلمان کی شدید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ سلمان کو فالج کا اٹیک ہوا، اسی وجہ سے سلمان کا پورا جسم بے حرکت ہو گیا ہے۔ جب علی نے ضامن کو سلمان کی حالت کا بتایا تو ضامن نے علی کو ہسپتال لے کر جانے کا کہا۔ ضامن کو اب سلمان سے حورین کے بارے میں بتانے کی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ سلمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر تشدد کر کے پوچھا جا سکے۔ اس لیے ضامن اب خود ہی حورین کو ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ ضامن، حورین کا کچھ پتہ لگا؟ وہ تھانے سے آنے کے بعد سیدھا پاکیزہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے وہ ہر جگہ حورین کو ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن جانے کہاں وہ چلی گئی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہیں ماما۔ ضامن نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور مایوسی سے جواب دیا۔ پریشان مت ہو، مل جائے گی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ میں بہت برا ہوں ماما، بہت گناہ گار ہوں میں۔ وہ اسی لیے چھوڑ کر چلی گئی مجھے، اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں نا؟ ضامن نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ اولاد جتنی بھی غلطیاں کر لے، لیکن ماں اولاد سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتی۔ ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تم اگر اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر رہے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر اس سے معافی مانگو گے تبھی خدا معاف کرے گا۔
वो ज़ामिन के चेहरे को बगौर देख रही थी, जैसे उसका चेहरा पढ़ रही हूँ। मैं मानता हूँ मामा, मुझसे जुल्म हुआ है, गुनाह हुए हैं, तभी तो सज़ा मिल रही है मुझे। सुकून नहीं मिलता मुझे मामा, बिल्कुल भी नहीं। वो आज अपनी माँ के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था। उसके चेहरे पर बेसुकूनी झलक रही थी। जब कोई आपकी वजह से बेसुकून हो, तो आप खुद कैसे सुकून से रह सकते हो? ज़ामिन के बालों में उंगलियां चलाते हुए वो बोली थी। मैं उसके साथ जुल्म नहीं करना चाहता था मामा, लेकिन मेरे गुस्से और इंतकाम ने सब बर्बाद कर दिया। वो छोड़ कर चली गई मुझे। 2 महीनों से पागलों की तरह हुरैन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सलमान की सारी बॉडी अटैक की वजह से नकारा हो गई थी, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकता था। इन 2 महीनों में ऐसा कोई पल न था जब ज़ामिन शाह को हुरैन की याद न आई हो। मर्द को खुदा ने बेहद मजबूत बनाया है ज़ामिन, यहाँ तक कि उसे एक शौहर के रूम में मजाजी खुदा का रुतबा दे दिया। खुदा अपने आप में बहुत भारी लफ्ज़ है और बहुत कम मर्द होते हैं जो इस लफ्ज़ को संभाल पाते हैं। अगर तुम इसको इज्जत ना दोगे जिसके मजाजी खुदा हो, तो क्या वो तुम्हें कभी मजाजी खुदा मानने पर आमादा होगी? या हर बिनते हवा को रुसवा करके खुदा होने की ताकत आजमाओगे? खुदा की कसम, अगर तुम एक औरत को इज्जत नहीं दे सकते तो तुम मजाजी खुदा तो क्या, मर्द कहलाने के भी लायक नहीं। कि मर्द तो औरत का मुहाफिज होता है। तुमने एक औरत पर जबर किया, अपने मर्द होने का, ताकतवर होने का फ़ायदा उठाया है। बेटा, जब किसी बेकसूर के साथ जुल्म होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लर्ज़ जाती है और वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो कोई जालिम बच नहीं पाता। वह रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वह जुल जलाल भी है। वो बोल रही थी और ज़ामिन का दिल डूबता जा रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। पहली बार वो अपने बेटे को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए देख रही थी। ज़ामिन को देखकर उनका दिल खुद भी रो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की इस्लाह करनी थी, उसको सीधी राह दिखाना थी। मामा, मैंने अपनी औलाद का कत्ल कर दिया। मैं जानता भी था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी वो जुल्म किए मैंने उस पर कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। इस वक्त वो खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार शख्स तस्वुर कर रहा था। कोई भी इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, रब्बुल आलमीन उसके लिए दुआ का वसीला और तौबा का रास्ता कभी बंद नहीं करता। ज़ामिन की टूटी हुई हालत पर उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया और तसल्ली दी। क्या सच में मामा, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए? वो खुद भी नहीं जान पाया कि ये सवाल उसने उनसे किया या अपने आप से। जबकि ज़ामिन की बात पर वो तड़प गई। तुम उस रहीम के दर पर जाकर तो देखो, ये आंसू उसके दर पर बहा कर तो देखो, वो एक उम्मीद से बोली थी। आसिफ साहब एक शरीफ और रहम दिल इंसान थे। उनकी बीवी भी बहुत अच्छी खतून थी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। वो सलमान शाह को पिछले 3 साल से जानते थे, जिस दौरान उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। फिर उनकी बेटी निदा और हुरैन की दोस्ती की वजह से भी खासा आना जाना लगा रहता था। जब सलमान शाह ने उन्हें अपनी परेशानी बताई, ज़ामिन और हुरैन का बताया और कहा कि वह ज़ामिन से अपनी बेटी को छुड़वाना चाहते हैं और अपनी बेटियों को पाकिस्तान से बहुत दूर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये मसला है कि वो अकेले अनजान मुल्क में कैसे रहेंगे। तभी आसिफ साहब ने उनको तसल्ली दी और कहा कि वो अपनी बीवी और बेटे के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, तो बेहतर होगा तुम दोनों बच्चियों के साथ हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, ताकि ज़ामिन भी उन तक ना पहुंच सके। लेकिन सलमान ने उन्हें कहा कि वो हुरैन और अमीन को अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। आसिफ साहब ने सलमान को बहुत बार साथ चलने का कहा, लेकिन सलमान ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह अमीन और हुरैन से कभी नज़रें नहीं मिला पाएंगे। आज उनकी बेटियों को दरबदर सिर्फ अपने बाप की वजह से होना पड़ रहा था। वो वहीं रहकर खुद को सजा देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बार बार हुरैन का वो वीरान चेहरा याद आता था। इतनी कम उम्र में उनकी बेटी ने क्या क्या जुल्म नहीं सहा था। हुरैन को राज़ी करके उन्होंने अगले ही दिन रामीन और हुरैन को एक होटल में शिफ्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ज़ामिन कभी भी हुरैन को लेने आ सकता है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही हुरैन और रमीन आसिफ साहब की फैमिली के साथ पाकिस्तान से बहुत दूर चली गई थी। उसे यहाँ के फ़िज़ा में सांस लेते 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस कमरे में बंद रहती थी। आसिफ साहब और समरीन बेगम बहुत शफीक और रहमदिल थे। वो हुरैन और रमीन को अपनी बेटी की तरह समझते थे। निदा भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने पर बहुत खुश थी, लेकिन हुरैन की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता था। निदा, रामीन और समरीन बेगम, बल्कि आसिफ साहब भी हुरैन को हर तरह से हंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन हुरैन तो जैसे ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई थी। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई थी। निदा, रामीन और हुरैन एक ही कमरे में रहती थी।
कहने को तो तीनों के अलग कमरे थे, लेकिन हुरैन की वजह से निदा और रमीन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। हुरैन की ये हालत थी कि वो बैठे बैठे डर जाती थी, रोने लगती थी। अक्सर रात को सोते सोते उठ जाती और रोने लगती। वक्त बड़ा बेरहम होता है। दुख देते वक्त उम्र नहीं देखता। कभी कभी कच्ची उम्रों में भी ज़माने की तकलीफ़ों से अच्छी तरह रोशनास करवा देता है। और हुरैन ने भी 16 साल की उम्र में ज़िंदगी की तलखी सही थी, और कच्ची उम्र में जामिन के साथ गुजारे 5 माह ने उसे वो दुख दिए थे कि वो चाहकर भी ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आ पा रही थी। हुरैन, प्लीज़ मत रोया करो। देखो, डार्क सर्कल्स हो गए हैं। प्लीज़ खुद को संभालो। यार, मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ इसके बाद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखो, मायूस मत हो हुरैन। हिम्मत करो, आगे बढ़ो। प्लीज़ यार, हमारे लिए, रामीन के लिए, मेरे लिए। निता पिछले 2 महीनों से ऐसे ही हुरैन को समझाती थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अच्छा ना यार, उठो, खाना खाते हैं। निदा, प्लीज़ आप लोग खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। हुरैन ने निदा के हाथ पर हाथ रख कर कहा, तुम कुछ खाती पीते नहीं हो यार। देखो कितनी वीक हो गई हो। तुम ऐसे करती हो तो रमीन भी टेंस हो जाती है। उसने भी कुछ नहीं खाया। हुरैन अपी, निदा अपी। निदा हुरैन से बात कर रही थी जब रमीन उनको पुकारते हुए कमरे में आई। हाँ रमीन, क्या हुआ? निदा ने रमीन से पूछा, जबकि हुरैन अब अपनी छोटी बहन को देखने लगी जो बहुत बदल गई थी। अब पहले की तरह शरारतें नहीं करती थी। रमीन। हुरैन की आवाज़ पर रमीन और निदा दोनों ने पहले हुरैन को, फिर एक दूसरे को हैरत से देखा, क्योंकि हुरैन इन 2 माह में कभी खुद से किसी को मुखातिब नहीं किया था। कभी कोई बात करता तो बस उनकी बात का जवाब देती थी। जी आपी। रमीन हुरैन के पास ही बैठ गई। हुरैन ने उसके माथे पर बोसा दिया। तुम और निदा चलो खाना खाने, मैं भी आती हूँ। हुरैन ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। सच्ची आपी? रमीन ने चहक कर कहा, और हुरैन ने इस बात में सर हिला दिया। हुरैन बेटा, आज फिर निदा हुरैन के सामने बैठी उसे समझा रही थी, क्योंकि हुरैन रात को डर गई थी और इसी वजह से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब आसिफ साहब और समरीन बेगम रमीन के हमरा कमरे में दाखिल हुए थे, और आसिफ साहब ने हुरैन को पुकारा। जी अंकल। हुरैन ने अपने आंसू पोंछते हुए सर पर दुपट्टा ठीक किया। आसिफ साहब कमरे में पड़ी एक कुर्सी खींचकर बैठ गए, जबकि समरीन बेगम हुरैन और निदा के करीब बेड पर ही बैठ गईं, और रमीन हुरैन के बिल्कुल साथ लग के बैठ गई थी। बेटा, आप कब तक कमरे में बंद? आसिफ साहब ने समरीन बेगम को इशारे से चुप होने को कहा तो वो चुप हो गई। निदा और रमीन बेटा, आप दोनों डिनर शुरू करें जाकर, हम हुरैन को लेकर आते हैं। चेयर पर बैठते हुए आसिफ साहब ने निदा और रमीन से कहा। निदा और रमीन ने बारी बारी हुरैन के माथे पर बोसा दिए कमरे से चली गई। हुरैन बेटा, आज मैं आपके पास बहुत मान से आया हूँ, मेरी बात को समझना। देखो बेटा, हम आपको काफ़ी वक्त से जानते हैं। आप यकीन करें कि आप और रमीन हमारे लिए निदा से कम नहीं है। बेटा, आपकी ये हालत हमें देखकर बहुत दुख होता है। आसिफ साहब के लहजे में फ़िक्र थी, परेशानी थी, जिसे हुरैन समझ रही थी। हाँ बेटा, अभी आपकी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में क्या क्या नहीं सहा आपने। आपको देखते हैं तो दुख होता है बेटा। इतनी प्यारी, इतनी लायक बच्ची हो आप, लेकिन समरीन बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। सामने बैठी मासूम सी बच्ची को देखकर उनका दिल तड़प उठा था। वो बच्ची जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। हुरैन बेटा, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। देखो, तुम्हारी इस हालत का असर सबसे ज़्यादा रामीन ने लिया है। वो भी बहुत छोटी है। बाप के बारे में इतनी है बड़ी हकीकत पता चलना, फिर आपके साथ जो हुआ उसका असर रामीन पर बहुत बुरा हुआ है। वो बहुत चुप रहती है। समरीन बेगम के रोने पर आसिफ साहब ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और खुद बात जारी रखी, लेकिन उनकी बात से हुरैन के आंसुओं से भरी आंखों में हैरत आई थी। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? रामीन को सब पता है? हाँ बेटा, सलमान ने बताया था कि आप दोनों को पता है। समिया भाभी और सलमान भाई की आखिरी वक्त में होने वाली बातें रामीन के सामने हुई थी। समरीन बेगम ने हुरैन को देखते हुए कहा। हुरैन बेटा, प्लीज़ आगे बढ़ो। अभी उम्र ही क्या है आपकी? क्यों रोग लगा लिया है खुद को अपनी बहन के लिए, वो बहन जिसे ज़रूरत है आपकी। पढ़ाई शुरू करो अपनी। आसिफ साहब ने नहायत शफ़क़त से कहा। रामीन का एडमिशन करवा दिया है हमने। निदा भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगी। मैं चाहता हूँ आप भी करो। आपके आसिफ साहब के चेहरे पर भी एक उम्मीद आई थी, जो हुरैन से थी, जबकि हुरैन का चेहरा अभी भी भीगा हुआ था। अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने रमीन के लिए बहुत किया, जो अम्मी ने कर सकी, जो मैं भी ना कर सकी। लेकिन मैं फिर से स्टडी स्टार्ट नहीं करना चाहती। ये नहीं कर सकती मैं, नहीं होगा मुझसे। हुरैन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हुरैन बेटा, प्लीज़ हमारी बात मान लो, पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दो। समरीन बेगम ने एक हाथ से उसके चेहरे पर रखा। उनके लहजे में बहुत मान था। हुरैन की आंखें फिर से भीगने लगीं। इतने प्यार, इतनी मोहब्बत के वो कहाँ आती थी। ठीक है, लेकिन
अंकल, मैं और रमीन आप पर बोझ नहीं बनेंगे। आपने जितना किया हमारे लिए उतना ही बहुत है। मैं आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अंकल, मैं जॉब करूंगी, अपना और रमीन का सारा खर्चा। इतना पराया समझ लिया आपने हमें। अब आप जॉब करेंगी बेटा। मैं इस अनजान शहर में आपको कभी इजाज़त नहीं दूंगी। हुरैन की बात काटकर समरीन बेगम बोली थी, बेटा, सलमान के अकाउंट्स में इतनी रकम है कि आप और रमीन किसी के मोहताज नहीं हैं। अंकल, मैं पापा के अकाउंट्स यूज़ नहीं करना चाहती। मेरे और रमीन के अकाउंट्स में हमारे हिस्से की रकम है जो दादी जान ने मेरे और रमीन के नाम की थी। हम बस वो यूज़ करेंगी। पापा को कोई पैसा नहीं चाहिए। आप नाराज़ हो अपने पापा से? नहीं अंकल, वो बाप है मेरे, मैं कभी उनसे नाराज़ नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उनके पास जो पैसे हैं वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आपको मेरी कंपनी में जॉब करना होगी ताकि मुझे भी तसल्ली रहे। आसिफ साहब हुरैन की खुददारी देखकर बहुत मुतासिर हुए थे। तभी एक मुनासिब हल निकाला ताकि वो भी सलमान को दिया हुआ वादा निभा सकें और हुरैन की खुददारी को भी ठेस न पहुंचे। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। बेटियां शुक्रिया अदा नहीं करती। चलो अब हमारे साथ बाहर आओ और खाना खाओ। समरीन बेगम ने हुरैन को प्यार से गले लगाया और आसिफ साहब ने हुरैन के सर पर शफकत भरा हाथ रखा।